Now I am doing aesthetic and laser surgeries also. So I have been ex-consultant at Vivekanand Hospital, Lucknow for 1 year. I was previously ex-resident Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, and ex-resident at Paramedical College, Lucknow. I did my fellowship in rhinology and skull-based surgery, Trichy, Tamil Nadu, under a famous surgeon, Narayan Janakiraman. He's a world-renowned surgeon, so I have been with him for 1 year. So I have learned all skull-based surgeries, pituitary surgeries, soft implant. So I have seen the end of ENT at that place. So after that, I started my private practice. I did my I have been doing my fellowship in lasers and aesthetic medicines recently this Jan, and I have been awarded as a lifetime member of Institute of Lasers and Aesthetic Medicine and lifetime membership in Indian Society of Aesthetic Medicine, and I am also a district secretary Lucknow for Ilamed Aesthetic Medicine. Next. So the first pic you can see, that's Narayan Janakiraman sir. He's a world-renowned skull-based surgeon. I have been with him for 1 year. Next pic you can see is also the extreme left. He's a surgeon who is a renowned rhinologist, a renowned Jayaprakash sir. He's a renowned laryngologist. So I have been associated with all the top surgeons around India. Next you can see this is another surgeon. He is also a top-notch rhinologist. He is based in Pune. Here is Dr. Rana, where I get the award for district secretary in aesthetics. Now here you can see different pics. I am doing surgeries. First one here you can see this is I am doing this surgery. I am doing this endoscopic tympanoplasty. Normally what happens, we do surgeries by ear surgery by doing opening the back of your ear. We cut the back of the ear. But now latest technology, we use endoscopes that we insert into your canal and give the incision and put the membrane. So you don't, aesthetically it gets very nice. You don't get any stitches at your back of the ear. Second surgery you are saying, this is also endoscopic surgery which I am doing for the nose. इसमें क्या है, there is no stitches on the face, so your face is fine. Whatever I am doing, it's called the functional endoscopic sinus surgery. इसका मतलब ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है तो नाक में पॉलिप बन जाते हैं या साइनोसाइटिस हो जाती है. सो स्नीजिंग, मेरा सिर्फ इसमें एक गिव मैसेज ये भी है कि किसी को भी अगर बहुत छींकें आती हैं या एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली. किसी भी आप फिजिशियन के पास जाते हो, दे गिव यू मॉन्टेक एलसी, तो सिर्फ मॉन्टेक एलसी खाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है आपके अंदर नाक में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है. सो उससे क्या होता है, साइनोसाइटिस, पॉलिप, ये सब प्रॉब्लम्स आती है. बाद में फिर आपको इसकी सर्जरी ही करानी पड़ती है. यू कांट अवॉइड इट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इट गोज इनटू स्कल बेस, मतलब कि आपके ब्रेन तक ये चीज जा सकती है. सो यू डोंट अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. आपकी बोन आपकी एरोड हो जाती है. सो दिस इज द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. अनदर पिक, आई एम डूइंग टॉन्सिलेक्टमी. इसमें क्या है, वी डू अ टॉन्सिलेक्टमी. गले का ऑपरेशन है जिनके एक्यूट इन्फेक्शन रहता है, टॉन्सिल्स, क्रोनिक इन्फेक्शन. बार बार जिसको गले में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लगता है कुछ मास फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द रहता है, फिर एंटीबायोटिक्स खाई, फिर थोड़े दिन बाद कहा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, हर वक्त खराश बनी रहती है. तो दीज आर बेसिकली योर टॉन्सिल्स गेटिंग इन्फेक्टेड अगेन एंड अगेन. अब इसका भी एसोसिएशन आपके नाक से ही होता है. सो गेट योरसेल्फ टेस्टेड. हमारा पास एंडोस्कोप से वी चेक ईच एंड एवरीथिंग, नोज, थ्रोट, ताकि आपका कहीं नाक से सारा एलर्जी गले में तो नहीं जा रहा, विच इज कॉजिंग दैट टॉन्सिलाइटिस. नॉर्मली पेशेंट्स को पास, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको एंटीबायोटिक्स देके भेज देते हैं. बट द प्रॉब्लम लाइज इन योर नोज. जब तक नोज को ट्रीट नहीं करेंगे, थ्रोट विल नॉट बी बेटर. That's, I am getting the award for that district secretary. After my this, I removed a point from a kid. This is also tonsillectomy. This is endoscopy, and this I am getting award for the district secretary. This is my hobby basically. I was being after back 3-4 years. I have been doing modeling also. I have been offered for. I have been winner for many shows. I got for Mr. Talented for my dance, and so these are my just hobbies. I would like to describe. Here you can see, now I have changed my name of the clinic to Infinity ENT Aesthetics, because I will be doing aesthetic part also. So any problem related to ear, if you are having pain in your ear, so this is also related with your nose. कान में कभी किसी को दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा पिंच हो गया, अभी क्या है मौसम चेंज हो गया है तो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, you feel pain in your ear. That is also related with your nose, with your allergy, because कान की ट्यूब खुलती है नाक के पीछे, it's called the eustachian tube. So
so it gets blocked, उससे रिकॉर्ड द प्रॉब्लम. So you get yourself checked with the endoscopy. Don't avoid all these things. बाद में क्या होता है, when you avoid all these things, आप पेन किलर खा लेते हो कान के दर्द के लिए, बट आपके कान के अंदर वो इन्फेक्शन स्लोली स्टडी डेवलप हो रहा है. तो इवेंचुअली क्या होता है, आपके कान के पर्दे में छेद हो जाता है एंड दैट डिस्चार्ज कम आउट फ्रॉम योर ईयर. तो एक बार इफ योर मेम्ब्रेन इज गॉन, एक बार छेद हो गया मेम्ब्रेन में, यू नीड टू गेट इट ऑपरेटेड. आपको एक नया पर्दा लगाना पड़ेगा उसको. सो बेटर यू गेट इट चेक. नाउ दिस इज व्हाट, अब ये हमारी एक न्यू क्लिनिक, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू क्लिनिक. दिस इज यू कैन सी द पिक्स. These are 3D reconstruction. It will be opening on 5th of August, in which I will be doing all the laser surgeries like scar removal, I will be doing laser hair removal, I will be doing fractional CO2, acne, I will be treating acne patients, and skin tightening lasers. So all these things will be included in this my new clinic, new venture. Thank you. Anybody have any questions for Dr. Kumar? सर, अगर किसी को एलर्जी है किसी परफ्यूम से या कुछ है तो उसको ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा, तो ये भी आप जो भी बिल्कुल बिल्कुल होता क्या है कि एलर्जी एक चीज से नहीं होती है. यू कैन हैव एलर्जी, आप पे डीजल का धुआं है, आप गार्डन में जा रहे हो पॉलेंस होते हैं, या आप बेड पे लेटते हो तो डस्ट होती है, वो हवा में उड़ती है, दैट पॉजिटिव. तो एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक एलर्जन. तो एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट. उसमें आपके बॉडी में हम लोग टेस्ट करते हैं, दे आर टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज के लिए स्किन प्रिक करते हैं. वी चेक कि आपको किस चीज से ज्यादा एलर्जी है, तो वो हमारी रिपोर्ट्स में आ जाता है. देन अकॉर्डिंगली, अब एलर्जी का वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यू ओनली टेक मॉन्टेकेल्सी एंड स्प्रेज. बट इसमें क्या है, वी डू इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, दिस इज लाइक वैक्सीन. हम आपके सब जिंदगी वैक्सीन जैसे होती है वैसे इम्यूनोथेरेपी देते हैं 3 मंथ्स के. तो आपका जो एक रिस्पॉन्स आना चाहिए एलर्जी से, दैट रिड्यूसेस, बिकॉज आपके अंदर एंटीबॉडीज उसकी क्रिएट हो जाती है. सो यू गेट इट टेस्टेड. कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. Thank you. Last question. जैसे कान में कभी किसी के सीटी बजती है, मेरे अक्सर बजती है. इसके भी कई रीजंस होते हैं. पीछे मुड़ के देखिए. इसके भी कई रीजंस होते हैं. जैसे मैं बताया आपको कि कान और नाक जुड़े हैं, तो एलर्जी अगर आपको है तो समटाइम्स यूस्टेशन टू ब्लॉक हो जाती है. तो कान के अंदर जब एरिएशन नहीं होता तो नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, तो सीटी आती है. एक रीजन और ये होता है कि आपकी जो नर्व है जो ब्रेन में जाती है, जो सिग्नल पहुंचाती है, दैट्स बिकम वीक. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं. तो वो वीक, तो यू गेट इट टेस्टेड. हम लोग पास एक टेस्ट होते हैं, टिम्पैनोमेट्री एंड प्योटोनॉडियोमेट्री. तो उसमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं, एंड वी डू द एंडोस्कोपी ऑफ योर ईयर. We can get you ticket for that. मुझे लगा कि कहीं प्यार तो नहीं हो रहा, सीटी बज रही है. लास्ट वीक मेरा ऑपरेशन हुआ था. मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी थी और मुझे लास्ट वीक मेरा ऑपरेशन हुआ था. मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी थी और मुझे सोने में प्रॉब्लम आती थी. मैं सीपैप लगा करके सो रहा था पिछले 6 महीने से. मैं डॉक्टर साहब से मिला और उन्होंने टेस्ट करके फिर उसके बाद बताया कि एक हड्डी भी टेढ़ी है और दूसरी तरफ रोमांच भी है. सो इट वाज इम्पैक्टिंग माय हार्ट एज वेल एज पर हिम. मुझे भी लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है. वेट भी एक रीजन था उसके पीछे. सो मैं ऑपरेशन करवाया और 2 दिन के बाद आई वाज फिट एंड फाइन. मैं ट्रैवल करके शाहजहांपुर से लेकर के और कश्मीर तक घूम के आया. अभी नहीं लगा रहा. Thank you very much. और स्टिल अभी 1-2 छोटे मोटे शायद हैं, अभी भी 1-2 ऑपरेशन होने हैं. एक ऑपरेशन I highly recommend Dr. Gaurav. And thank you. It means a lot. Please bring him a testimonial. Raviji, please bring him a nice testimonial. I'll show you. Thank you. Now that we know more about what he does, नाक का छेद बंद है तो हमारी भी कान में छेद बंद करवा दी थी. तो मतलब बेसिकली छेदों का